Rahim, Honorable Parliamentary Secretary, Higher Education, our superstar Chairman PHEC, Secretary Higher Education, Honorable Vice Chancellors. I see so many wonderful, amazing Vice Chancellors. I don't know whether I should start from VC Okada and his reforms or tell you about what's going on in Gujarat or Punjab University or Faisalabad. Or I was just recently in Sialkot or Pendi or IUB or Home Economics. All of them are doing amazing work. We are so honored to have all of you here. And I think we should all clap because Dr. Saab has emphasized enough on young people, and I am an example. But we should also clap for our seniors like Dr. Nizam who are here and have done wonderful work for this country. It's so heartwarming to see all of you. आप सारे इतने कमाल projects बना के लाए. I'm sticking to PinTech because हमने एक reforms की लंबी list है जो आपसे share की on what we have done in the past 1 year. And Alhamdulillah, it looks like at Higher Education Department, on Punjab Higher Education Commission, honestly have done work for at least 10 years in 1 year at the speed that they're working on. I want to give them shabash, number one. And number two, it flows to the ground. So अगर डॉक्टर साहब ने आपको ये बताया कि 25 जामियात के वाइस चांसलर्स नहीं थे, and we have amazing, brilliant students from Government College University. That is the other thing that I initiated and made sure of कि हम गवर्नमेंट लेवल पे परफॉर्मेंस के लिए जाके 3-2 लाख रुपए के लोग आ रहे हैं लेके, whereas हमारा टैलेंट और हमारे सुपरस्टार्स हमारे सामने हर जामिया के अंदर बैठे हुए. So we have to make sure that we pick you up, we promote you. And I was just speaking to Dr. Saab that पहले दिन जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे हमें मिले और आज के इनके कॉन्फिडेंस में बहुत डिफरेंस. So we have to make sure that we stand behind each and every one of you and make sure that every dream that you're dreaming for, we are here to help facilitate you get and achieve your dreams. Coming to the colleges, so 850 कॉलेज और 50% से ज़्यादा कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स नहीं. क्या कोई इदारा एक अच्छे हेड के बगैर चल सकता है? आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू, चल सकता है? So we made sure, alhamdulillah, and today I am also very proud to share that because principals were appointed on merit, because director colleges were appointed on merit, alhamdulillah, 5 out of 9 director colleges were brave females and they're leading their respective divisions. पहली दफा उन्हें मौका मिला है for those women to come forward. And so is the same story with the Honar Scholarship Program. हम आप सब की यूनिवर्सिटीज़ में गए और scholarships किन disciplines में दे रहे हैं. Chief Minister Punjab wanted to make sure that this scholarship scheme is sustainable, that it gives results, that it brings financial independence for all of you. It brings financial inclusion for all of you. And it also brings merit for all of you. अगर किसी ने ख्वाब देखना है कि मैं किंग एडवर्ड से डॉक्टर बनूंगा और वसाइल रास्ते में आ गए और वो ख्वाब इसलिए बिखर गया कि उसके वालिद के पास फीस नहीं है या बच्चे 5 हैं तो बेटा मैं एक बेटे को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, आप यहीं पढ़ लो. ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का मिशन नंबर 1 है कि जिस बच्चे ने ख्वाब देखना है जिस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने का, वो ख्वाब देखे, उसके फाइनेंसेस चीफ मिनिस्टर पंजाब की जिम्मेदारी है. एंड शी इज एब्सोल्युटली डिलीवरिंग दैट. एंड देन आई वाज जस्ट मैं अभी एक स्टॉल पे गया तो मुझे लैपटॉप नजर आया, शहबाज शरीफ साहब का दिया हो. हमने इंटरव्यूज किए, मल्टीपल स्टूडेंट्स एट कम कि मैं 4 साल से ये गैजेट यूज कर रहा हूँ. एंड टुडे सिंस वी आर एट टेक्नोलॉजी एक्सपो, I want to ask all of you students again,
how important are laptops for a university student? Are they important? Can you please raise your hands to tell us how important they are? So inshallah, starting from Shahid Munir Saab's University of Engineering and Technology, इस महीने की 30 तारीख से आपसे किया हुआ वादा चीफ मिनिस्टर पूरा कर रही हैं, एंड स्टार्टिंग विद 16,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम लाहौर, इंशाल्लाह 1,10,000 स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स मिल रहे हैं सब यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलेजेस में। बच्चे ने बहुत अच्छा यहाँ से सवाल किया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सो लेट मी टेल यू कि इस साल जब होनहार स्कॉलरशिप्स दी गई पहली दफ़ा, बिकॉज मिनिस्टर और सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्टर का भी मिनिस्टर है और वो पब्लिक सेक्टर का भी मिनिस्टर है, ही हैज़ टू मेक श्योर कि उसने अपने सूबे को आगे कैसे लेके जाना है। सो हमने होनहार स्कॉलरशिप्स प्राइवेट सेक्टर में भी दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह लम्स के 100 स्टूडेंट्स चीफ मिनिस्टर की होनहार स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। आज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी 300 लोगों का बैच होता है, 223 बच्चे, अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ द डॉक्टर्स इन किंग एडवर्ड्स दिस बैच इज बिकमिंग अ डॉक्टर फॉर एब्सोल्युटली जीरो फी थ्रू द होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये कोई छोटी बात नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रीम्स टू पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने वीसी साहब के पास से 3 स्टूडेंट्स दे केम टू मी एंड दे सेड कि सर हमारे पास हॉस्टल के ड्यूज नहीं। आई सेड हाउ डिड यू लैंड अप हियर, आप आए कैसे, फीस कैसे देते हो अगर हॉस्टल के ड्यूज ही नहीं है? तो उन्होंने कहा जी हमें तो होनहार स्कॉलरशिप आई और हमने गांव से अप्लाई कर दिया, समवेयर इन बिहाड़ी और रूरल एरिया इन भावलनगर, आई डोंट रिमेंबर। हमें क्या पता था कि हमें मेरिट पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब हमें स्कॉलरशिप मिल गई, हम पंजाब यूनिवर्सिटी आ गए हैं, आपने हमारे ख्वाब पूरे कर दिए हैं, बट हमारे पास अपने हॉस्टल की फीस भी नहीं। सो जो आपने बड़े बड़े ख्वाब पूरे किए हैं उनमें इंशाअल्लाह अगले आने वाले टाइम्स में हम बैठना चाहते हैं वाइस चांसलर्स के साथ, और वी वांट टू मेक श्योर कि एवरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट is housed and fed properly, and we will sit down, make a policy, do reforms, pump in more funds if required, but we have to make sure कि हमारी बहनें जो दूसरे शहरों में जाके पढ़ रही हैं वो सेफ भी हैं और वो एक हेल्दी तरीके से अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी आ जा रही हैं। और साथ ही साथ आई हैव पुट अप अ प्रपोजल, एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल बी काइंड दैट द चीफ मिनिस्टर विल अप्रूव इट। इस साल हम 10,000 लैपटॉप्स प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी देना चाहते हैं ताकि उनके ख्वाब भी पूरे हों, वो भी उन गैजेट्स का इस्तेमाल करें। एंड व्हेन यू स्पीक एट लेंथ अबाउट द रिफॉर्म्स, इट टेक्स अ लॉट फॉर द टीम दैट इज बिहाइंड द स्क्रीन्स रनिंग द शो. So I want to acknowledge everybody at the Punjab Higher Education Commission, starting from the COO Mansoor Bhai, Jawad, everybody who's been a part, and starting from the Higher Education Department, be it Watu Saab or our Superman Azam leading from the front, or our Madam AS Universities is here, or Gondal Saab, everybody, हर कोई रात 3-3 बजे तक ये efforts करता है पिछले 2-3 दिन। ऑनरेबल DPI is here, तो फिर जाके ये सारी चीज़ें आपके लिए तैयार होती हैं। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज पुट अप अ बिग हैंड फॉर ऑल द टीम दैट वाज बिहाइंड दिस, बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एंड डॉक्टर साहब कमिंग टू द ड्रीम, एंड आपने इन बच्चों के ख्वाब पूरे किए, आपने 5-fold इनाम बढ़ा दिया। अब मसला ये है कि हमने इन बच्चों को आगे लेके जाना। So I, as your Minister for Higher Education, want to announce that we will make a fund of 10 crore rupees this year only to fund these projects so they can actually scale it up through our venture capitalist fund. So give them a chance. We will keep directing the Vice Chancellors. They will all be facing resource shortage.
तो डॉक्टर साहब अगर 41 अरब जा रहा है तो 10 करोड़ फिर नौजवानों के लिए भी जाना चाहिए. लेट्स ब्रेक दैट मिथ. Let's give that girl the opportunity who's baking muffins here and is fortified and she's also working on different angles. Let's give the brave gentleman who made a tractor in 10 lakh rupees, or somebody who's done something in technology and is lacking resources. We will inshallah fund you at least 5 million per project through your vice chancellor, ताकि आप लोग उस पर काम करें, उसकी सस्टेनेबिलिटी पे काम करें, कमर्शलाइजेशन के एंगल पे काम करें, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके पेटेंट्स रजिस्टर करें. बड़े बड़े ख्वाब देखें, क्योंकि बड़े ख्वाब देखने से ही आदमी आगे जाता है. और मैं अपनी सब बहनों को भी ये कहना चाहता हूँ that our chief minister is literally working 18 hours every day. And she's worried about all the females. She's doing tons of reforms. And the good part is that over 61% of the Honorar scholarships on merit have gone to female students, alhamdulillah. और मैं ये ख्वाब भी देखना चाहता हूँ. Somebody asks me, what is your dream after year number 5? I tell them all the reforms that Dr. Saab spoke at length about, the KPIs, about the 5-year higher education plan, with a wish अगले साल, अगले टेन्योर में, मेरा मतलब है कि एक पहली फीमेल मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन भी होनी चाहिए, एक फीमेल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी होनी चाहिए. क्यों हम इन्हें एम्पावर नहीं कर सकते? हम ज़रूर करेंगे. एंड नाउ दैट वी ब्रोकन द मिथ ऑफ द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर इज हियर, द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज करंटली सर्विंग. The first senior minister is currently doing wonders in her department and 2-3 other departments. I think कि जिस दिन हम फीमेल्स को इक्वल कोटा देने लग जाएंगे जॉब्स में, जिस दिन हम उन्हें रोकना बंद कर देंगे कि आपका वालिद आपको डॉक्टर बनाता है और मेरे जैसा हस्बैंड आता है, वो कहता है कि ओह मेरी फैमिली के अंदर काम करने की इजाज़त नहीं, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रास्ता, उसका करियर और उसके पढ़ाई के वसाइल उसके वालिद ने दिए थे, वो ख्वाब देखते हुए कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी. सो वी वांट टू मेक श्योर दैट वी ट्रांसलेट all of you into good jobs, into good futures, and through one reform that I want to tell you of school education department, that we were giving out schools to NGOs and school chains. मैंने 60% कोटा रखा कि हम स्कूल्स यंग एंटरप्रेन्योर्स को देंगे. आज 1,15,000 जॉब्स हमने क्रिएट की हैं 6,000 स्कूल्स में, जो 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स को गए, उन्होंने हर स्कूल में 6 टीचर्स रखे. एंड वी हैव, आई वाज एट UMT 2 days ago और मैंने लिस्ट दे के आया हूँ कि 12 students from the University of Management and Technology have taken over our schools. Students from LUMS, from Punjab University, from Government College University, UET, everywhere, because आपको हमने entrepreneur बनाना है. इस दुनिया में आपको हमने, we have to make sure कि हम ये डिबेट एंड करें कि इंडिया के 18 लोग टॉप कंपनीज के CEOs हैं. आने वाले 10 साल में इंशाल्लाह आप लोग दुनिया की टॉप कंपनीज के CEOs होंगे. एंड वी विल मेक श्योर दैट वी डू एवरीथिंग. एक चीज हम जो कर रहे हैं वो डेटा ड्रिवन है. हम डिसीजंस खुद बैठ के नहीं लेते. वी कॉल इन एक्सपर्ट्स फॉर एवरीथिंग. एंड लाइक आई ऑलवेज से कि इस मुल्क में और इस दुनिया में education, and I am an economist by profession, I can debate at length कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट से बड़ी इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा बड़े रिटर्न्स इस दुनिया के किसी काम में नहीं हो सकते. बिकॉज ये ना सिर्फ तालीम का मामला है, ये एक अच्छे मुल्क का मामला है, ये अच्छी तरबियत का मामला है, स्किल सेट का मामला है, एक बेहतर सूबे का मामला है. और दुनिया में हर चीज़ रुक सकती है. We can lessen our budgets on the roads that we are building, on the bridges we are making. Everything in the world can wait. Education will not wait a minute, inshallah, not anymore. And we will make sure
that along with all of these vice chancellors, we address the issues that you're facing of very, very high private sector fees that you have to give sometimes. We have to make sure कि अगर government hundreds of billions invest कर रही है, तो वो इसलिए कर रही है कि वो टैक्सेस आपके पेरेंट्स देते हैं, हम सारी सैलरीज में देते हैं, गरीब आदमी शैम्पू खरीदने हुए टैक्स दे रहा है, वो बिजली के बिलों में टैक्स दे रहा है, वो सारा टैक्स कलेक्ट होकर हमारे पास आता है, हम पॉलिसी बनाते हैं कि दे दें तालीम को इतने पैसे। बट अगर तालीम मेयारी नहीं दी जा रही, अगर वालिदैन को फिर भी फिक्र है कि मैं अपनी बेटी की फीस कैसे दूंगी, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि दिस ईयर इंशाअल्लाह ताला our chief minister, along with scholarships, along with laptops, is going to make sure that we see that shift of students. मेरे वालिद मुझे कहते हैं कि मेरा ख्वाब था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना। आज के बच्चों का ख्वाब होना चाहिए लम्स जाएं, बट लम्स को बने हुए मेयरली 25 years हुए हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी उससे एटलीस्ट 10 गुना पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को लम्स से बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बनाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी को दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी, हम लेके जाएंगे BZU को टॉप 100 रैंकिंग्स में। लाइक डॉक्टर साहब वाज सेइंग दैट वी आर वर्किंग ऑन एवरी एंगल। ये क्या बात हुई, हमने आज तक एक ऑफशोर कैंपस नहीं खोलने दिया यार। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स इस काबिल होगी और एक कैंपस लंदन में खोलना चाहती है, तो हमारे लिए फख्र की बात। हम क्यों रोकें उन्हें? सो वी आर गोइंग टू मेक वे फॉर देम, बी इट द पब्लिक सेक्टर or the private sector, and I want to assure all of the vice chancellors who are sitting here that inshallah, when it comes to funding, we are all handicapped, but we will not leave you behind. We will make sure that we pump in not thousands, not hundreds of thousands, but billions of rupees into higher education this year, because हमने इन बच्चों को इनकी IIT देनी है, हमने इन सब को इनके वो ख्वाब पूरे करके देने हैं। और एक्सेस टू हायर एजुकेशन में आज देखें, बांग्लादेश 16-18%, इंडिया 28%, पाकिस्तान इज अंडर 10%. So after 5 years, Dr. Saab, inshallah, we should be standing here tall in front of them and telling them that we in the 5 years have beat India. We have beat Bangladesh in access, in quality and governance, and that is my dream. Thank you very much.